All right. So good evening again. Please confirm that I'm audible to you so that we can continue with our class. I'm clearly audible. Okay. Yeah. Fine. So students, in the last class, we have started the chapter whose name is polynomials. All right. And in the last class itself, we have seen monomial, binomial, polynomial. Right. After that, we have seen some linear polynomials, quadratic polynomials, and cubic polynomials. I hope you all remember this. Okay. Now I will present the screen. Here we go. Okay. I hope it is visible to you. So we'll quickly brush up the things, or we'll revise the things that we have already seen. Okay. So monomial means what? Monomial means we have only one term in that polynomial. Okay. We have if we have only one term, then that particular polynomial is called as monomial. What is binomial? Binomial is the polynomial having two terms in it. Similarly, for trinomial, there will be three terms, isn't it? Now, next one we had, that is linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. Now, the three types that we have seen already, जो कि हमने देखे ना कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सो इन तीनों में कोई भी ऐसा एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है. ओके. एनीथिंग कैन बी एनीथिंग, लाइक a quadratic polynomial can be a monomial, a binomial, or even a trinomial, isn't it? So ये हमने सीखा है, मतलब हमने ट्रायल एंड एरर से ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में ट्राई की है. ओके. स्टूडेंट प्लीज एक बार कंफर्म करना कि मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, आई एम हियरिंग सम काइंड ऑफ इशू एट माय साइड itself. Voice is clear? Please confirm. Yeah, it is clear. All right. Okay, okay, fine, fine. So I'm not sure what is echo in my headphones. All right, no problem. So we have seen some examples of these things: linear polynomials, quadratic polynomials, and cubic polynomials. Now, in this class, what we are going to do is we are going to see standard form, coefficient form, and index form of a polynomial. So these three forms are there. And how do we represent any polynomial in these three forms that we are going to see? Okay. So let's start. Let us suppose we have a polynomial that is p of x. We read this like p of x is equals to x minus 3x square plus 5 plus x raised to 4 is a polynomial in x, in variable x, which can be written in descending powers of its variables as x raised to 4 minus 3x square plus x plus 5. This is called as standard form of polynomial. Now remember students, standard form of polynomials कैसे लिखते हैं हम? The power which is greatest or the greater, that we write first. ठीक है, मतलब जो पावर सबसे ज्यादा है ना, तो उसको हम पहले लिखेंगे. Like x raised to 4 is here, so I will write x raised to 4 first, then 3x square plus x plus 5. यहाँ पे क्यूब की टर्म नहीं है, if you can remember, यहाँ पे क्यूब की टर्म नहीं है, so we are not going to write that, right? So this is called as a standard form of polynomial. Now, but in this polynomial there is no term having power 3, as I told you already कि क्यूब की टर्म यहाँ पे नहीं है. So uh, no term having power 3 of the variable, we can write it as 0x raised to 3 या फिर 0x cube, isn't it? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना. Just a second. Okay, see, अगर कोई भी टर्म नहीं है x क्यूब की, तो हम 0x क्यूब लिख सकते हैं. इट कैन बी added to the polynomial and it can be rewritten as x raised to 4 0x cube minus 3x square plus x plus 5. So this is called as an index form of a polynomial. So what is the difference between standard form and index form? So standard form में हम क्या करते हैं? Standard form में हम वही terms लिखते हैं जो terms आयुष
Are you unmuting yourself? Is that? Don't do this. Okay. Like, okay. So स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं? In the standard form we write the terms which are already given in the polynomial. मतलब जितने टर्म्स दिए हैं उतने ही टर्म्स हम पॉलिनोमियल में लिखते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम आयुष. ठीक है. और इंडेक्स फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है? इंडेक्स फॉर्म में इट माइट बी नेसेसरी कि वी हैव टू ऐड सम टर्म्स, मतलब हमें कुछ टर्म्स ऐड भी करना पड़ सकता है. अभी कैसे ऐड करना पड़ सकता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. सबसे बड़ी पावर, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, और सबसे लास्ट में जो है वो कांस्टेंट आएगा. सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन इंडेक्स फॉर्म में हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना ही है, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना ही है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ऑल द पावर्स उसमें इंक्लूड हो. लाइक एक्स रेस टू 4 है तो हमें एक्स रेस टू 3 भी इंक्लूड करना है, एक्स रेस टू 2 भी इंक्लूड करना है, एक्स रेस टू 1 भी इंक्लूड करना है, और एक्स रेस टू 0 भी इंक्लूड करना है. अभी यहाँ पे एक्स रेस टू 0 कहाँ पे है? एक्स रेस टू 0 यहाँ पे है, या इसको हमने एक्स रेस टू 0 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं. ओके. सो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में और इंडेक्स फॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. जब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तब आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. Now, one can write the coefficients of the variables by considering all the missing terms in the standard form of the polynomial. For example, x cube minus 3x square plus 0x minus 8 can be written as 1 minus 3 0 minus 8. This is called as the polynomial. This form of the polynomial is called as a coefficient form. Now coefficient form कैसे हम कैसे लिखते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एक कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल दिया है, कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट पॉलिनोमियल इनटू इट्स विच फॉर्म? इंडेक्स फॉर्म. कंसिडर दिस, हमें उसको उसके इंडेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है. उसके बाद में जो कोएफिशिएंट्स है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोएफिशिएंट्स. सो एक्स, इस पॉलिनोमियल में, अभी अगर इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो मुझे बताना एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? मतलब एक्स क्यूब, नो, दैट इज नॉट द कोएफिशिएंट, दैट इज द पावर ऑफ एक्स. See, 3 is the power of x. Coefficient means the constant which is in multiplication with the variable. Coefficient means the constant which is in multiplication with the variable. अभी यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है. सो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1 हुआ, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. नो, यहाँ पे माइनस 3x² का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है क्या कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का? नहीं. 3 भी नहीं है. नो, 3 is not also the coefficient. Tell me the exact coefficient. Minus 3 is the coefficient. Okay, see, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे. अभी 0x है, 0x का कोएफिशिएंट क्या है? तो 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा. और बाद में क्या बचा? -8, तो मैंने -8 लिखा. तो इस पॉलिनोमियल का, दिस पॉलिनोमियल इज इन द इंडेक्स फॉर्म. ओके, ये इंडेक्स फॉर्म में है, तो इसे मैंने यहाँ पे कैसे लिखा? कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा. तो समझ में आया अभी हम कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? नाउ सी, 4y raised to 4 plus 0y cube minus 5y square plus 0y plus 1. This form is called as the index form of the polynomial. अभी आप इस polynomial को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखिए. चलिए सब लोग लिखिए कोएफिशिएंट फॉर्म में. जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखा है ना, सब लोगों ने इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में चैट बॉक्स में लिखना है. Everyone, write the coefficient form of the given polynomial which is written in the index form. चलो मुझे सब लोगों से आंसर चाहिए. हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 स्टूडेंट्स आर देयर. आई नीड 8 आंसर्स इन द चैट बॉक्स. तब तक मैं अगला अगला एग्जांपल नहीं लूंगा. डिड यू गेट दिस? समझ में नहीं आया है तो बताना है, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड. बट आपको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना ही है. Okay, somebody has written 4 0 minus 5 0
1. I'm not sure whether this is correct or wrong. Others, please try. Are you trying or not? Okay, 4 plus 0. आयुष, सी, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नॉट अंडरस्टैंड. ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मतलब सिंबल प्लस है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है. अगर नेगेटिव है तो लिखना है. ओके, प्लस अगर लिखोगे तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. अभी 0 प्लस 4 प्लस 0, यहाँ पे कॉमा से तुम्हें सेपरेट करना है. लाइक कादम्बरी ने देखो कैसे लिखा है, 4, 0, -5, -0, 1. तो इस तरीके से लिखना है. तो विशाल, यू से दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस. सो सिंपल ट्रिक इज, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है विशाल, यू टेल मी. Sir, but in the upper example, they have written only number coming in front of x. Yeah, so we are also writing the number only, na? We are also writing the number only, but we have to take into the consideration the sign also. ओके वेदांत, हमें साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे. देखो ना, यहाँ पे भी जो उन्होंने पहला एग्जांपल लिखा है उसमें भी 1 के बाद में क्या लिखा है, उन्होंने -3 लिखा है. Isn't it? सो जो एक्स के सामने आया वो उन्होंने लिखा है, लेकिन वहां पे साइन भी लिखा है. आई होप कि तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया है वेदांत. और स्टिल कंफ्यूज्ड वेदांत? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. सो ठीक है. नाउ सी, अभी सबको ये फॉर्म्स कैसे होते हैं ये समझ में आ गया नहीं? नाउ रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल का या फिर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करते हैं? वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में. अभी इतना मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस यूज कर रहा हूं तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपली क्या याद रखना है, जो भी सबसे बड़ी पावर है वो पहले लिखनी है. उसके बाद उसके उससे थोड़ी सी छोटी लेकिन बाकी सारों से बड़ी पावर हमें लिखनी है. उसके बाद छोटी. इस तरीके से हमें आखिर में कांस्टेंट आना चाहिए. सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो होना चाहिए सबसे बड़ी वाली पावर, और आखिर का जो हमारा टर्म है वो होना चाहिए एक तो या तो कांस्टेंट या फिर सबसे छोटी वाली टर्म या फिर सबसे छोटे पावर वाली टर्म. ओके, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम इंडेक्स फॉर्म कन्वर्ट करते हैं. अभी इंडेक्स फॉर्म में हमें क्या चेंज करना है? इंडेक्स फॉर्म में हमें चेक करना है कि सारे पावर्स प्रेजेंट है कि नहीं है. लाइक m⁻⁵ है, m⁻⁴ है कि नहीं, 3 है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है. अगर वो नहीं है तो हमें ऐड करके वो लिखना है. ओके, सो दैट विल बी द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. इंडेक्स फॉर्म से हम कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं? वी जस्ट टेक कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द वेरिएबल्स एंड वी फॉर्म द कोएफिशिएंट फॉर्म. ओके, सो अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, सो जिससे आपको और ज्यादा आइडिया आ जाएगा. नाउ सी, इन दिस एग्जांपल p of m is equals to 3m⁵ minus 7m plus 5m cube plus 0. Okay, so this is our polynomial. नो, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब क्या करना है कि सबसे बड़ी वाली जो पावर है, अभी विच पावर इज सबसे लार्जेस्ट पावर इज 3m⁵. तो मैंने 3m⁵ पहले लिखा. उसके बाद में क्या आता है बड़ा? सो 5m⁻³ तो मैंने 5m⁻³ लिखा. उसके बाद में 7m, लास्ट में कांस्टेंट टर्म. तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ओके, नाउ इंडेक्स फॉर्म में मैं क्या करूंगा? अभी देखो, यहाँ पे रेस टू 5 तो है, लेकिन रेस टू 4 की टर्म नहीं है. रेस टू 3 की टर्म है, लेकिन रेस टू 2 की टर्म नहीं है. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेस टू 4 की टर्म और रेस टू 2 की टर्म ऐड करनी पड़ेगी. तो मैं कैसे ऐड करूंगा? 3m⁻⁵ प्लस 0m⁻⁴ प्लस 5m⁻³ माइनस सॉरी प्लस 0m⁻² माइनस 7m+2. ये बाकी का मैंने जैसे के जैसे लिख दिया.
अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ राइट इन इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका 5 है, इसका फिर से 0 है, इसका -7 है और इसका 2 है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख दिया। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑब्वियसली 5 बिकॉज लार्जेस्ट पावर और द बिगेस्ट पावर वी से इट एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरीके के हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं। नाउ अभी राइट द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 इन इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट इन इट्स विच फॉर्म? कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो कोएफिशिएंट फॉर्म से पहले हम किस फॉर्म में इसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड में नहीं। ओके, स्टैंडर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बट स्टैंडर्ड इज नॉट मोर करेक्ट। हमें इसके इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। इंडेक्स फॉर्म में क्या करते हैं हम? सारे टर्म्स उसमें इंक्लूड करते हैं, पावर के सारे टर्म्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं? बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सिर्फ कादम्बरी एंड वेरी फ्यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। इज इट? वैष्णवी, आर यू देयर इन द क्लास? यू हैवंट सेंट वन रिस्पॉन्स। ठीक है, सब लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहो ना, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, फाइन। नाउ लेट्स गो फर्दर। सो सी, कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले हमें उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। ओके, और इंडेक्स फॉर्म लिखने में आसान हो इसके लिए हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, नॉट नेसेसरी कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है उसे। ओके, चलो, तो shall we solve the practice set? All right. Now tell me, state whether the given algebraic expressions are polynomial or not. Justify. Now tell me, first one is polynomial or not. I need answers from you. First one is polynomial or not. And if it is a polynomial, then why? And if it is not polynomial, then why not? ओके, आप लोगों को आंसर देना है। आप लोगों को माइक ऑन करना है तो आप माइक भी ऑन कर सकते हो, नाम लिखना चैट बॉक्स में और माइक ऑन करके आंसर देना है। ओके, डरने की कोई बात नहीं है। It is okay. Vedant says it is not a polynomial. Kadambari also says it is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Can you tell? Can you tell anyone of you? If you are comfortable, you can turn on your mic. Anyone, turn on your mic. No problem with it. Why it is not a polynomial? Try to speak. It's okay if you make mistake. Because index of y is 1 by y. See, I would like to correct this little bit. Okay. कोई कुछ कहना चाहता है, आंसर देना चाहता है कोई? मैंने इंटरप्ट किया किसी को? वेदांत, ओके वेदांत, गो फॉर इट। Sir, because it has only two values, y and 1 upon y. Polynomial has four values. Okay, fine. So Vedant, yeah, you can turn off your mic. So see Vedant, this is not the concept of polynomial. Like you said, it has only two values, y plus 1 by y, which is like in polynomial we have four values, isn't it? So जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मोनोमियल एक होता है, मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? वन टर्म्स होते हैं, एक टर्म होती है, बराबर। बाइनोमियल में दो टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होती है, राइट? सो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, दे ऑल आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें दो टर्म है तो सर ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल नहीं है, सॉरी ये बाइनोमियल है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट अस सपोज, मुझे एक बात बताना। ओके, सो लेट अस सपोज यू आर इन अ 9th स्टैंडर्ड, ओके, एंड यू हैव वन फ्रेंड विच इज इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जब आपको पूछा जाएगा कि वेदांत इन विच क्लास यू आर, तुम कहोगे 9th स्टैंडर्ड में। अगर वही क्वेश्चन तुम्हारे फ्रेंड को पूछा जाएगा, वो कहेगा सर मैं तो 10th स्टैंडर्ड में हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो,
which is your school, so your answer will be same or different. अगर मैं तुम्हारे स्कूल का नाम पूछता हूँ तो तुम सेम 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 आंसर आएगा ना तुम्हारा दोनों का, ठीक है। भले ही वो 10th में है, तुम 9th में हो। इसी तरीके से वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, डजेंट मैटर, इट इज पॉलिनोमियल। ओके, अभी हमें टर्म के बेसिस पे इसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। वेदांत समझ में आया? टर्म्स कितने हैं इसको कैलकुलेट करके हम ये नहीं बता सकते कि वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। So what is next criteria? Next criteria is we check powers of the variables. Vedant, any confusion? अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो frankly you can raise your hand, you can type your name in the chat box, you can talk with me. See, I'm not gonna like scold you. Okay, I don't like that. Okay, sir, what is mean by power of the variable? Okay, power of the variable. Now let us suppose this is a variable. In this example, variable is y. In this example, variable is x. In this example, variable is x. In this example, variable is m. In this example, there is no variable. We can take any of them. Okay, so forget about this. So इन चारों में वेरिएबल क्या क्या है? इसमें वेरिएबल है y, इसमें वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल है ax, इसमें m। तो अभी इससे तुम्हें क्या समझ में आता है वेदांत, कि वेरिएबल यानी क्या होता है? वेरिएबल यानी क्या? वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वेरिएबल यानी इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज वेरिएबल एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय अ अल्फाबेट, ठीक है। तो कोई भी अल्फाबेट जो रहता है इक्वेशन में उसे हम वेरिएबल कहते हैं। नो, पावर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या? तो जैसे कि थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो टू जो है वो पावर है। Power of variable x is 2. Power of variable m is minus 2. Okay, so this is variable and this is power. All right, is it clear? Okay, now, now, why this is not a polynomial? Because let us suppose if we simplify this, I will write it as y plus y raised to minus 1। ये जो y है ना, ये y अगर ऊपर आएगा ना न्यूमरेटर में तो इसका जो पावर है वो -1 बन जाएगा। नाउ कैन यू टेल व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज इट हैज नेगेटिव पावर, इट्स इंडेक्स इज नेगेटिव। वेरिएबल का इंडेक्स कैसा है? नेगेटिव है। एंड अकॉर्डिंग, या प्लीज कम ऑन द माइक, नो प्रॉब्लम। This rule is compulsory or not, that the what we say? हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा कोई रूल है क्या कि ये जो दिए है ना 2 - 5 जो भी है ये सब उन्हें 4 ही वैल्यू चाहिए? नो, देर इज नो एज सच रूल, मतलब 4 वैल्यूज चाहिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आई डोंट नो तुमने कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन मे बी तुम्हें सी, तुम ये 4 का जो आंकड़ा तुमने पकड़ रखा है ना, वो मैंने मतलब किस तरह से मैं कैप्चर करूं, माइक बंद करो। तो मैं किस वजह से बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन यानी क्या, कि एक अगर टर्म है तो उसे मोनोमियल कहिए, दो अगर टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहिए, और तीन अगर टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल कहिए, ऐसा आपकी किताब में दिया है। ओके, बट दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। ये चैप्टर ही पॉलिनोमियल है ना, मतलब इसमें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दिस ऑल आर पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4 टर्म्स हो तो ही पॉलिनोमियल है, एक टर्म हो तो पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, ये जो 4 का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। ओके, सिर्फ ये है कि एक टर्म है तो मोनोमियल कहना है, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, लेकिन इन तीनों को भी तुम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, फाइन। नाउ वन मोर थिंग, कादम्बरी, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ सी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पॉलिनोमियल का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी
इट शुड बी व्हाट स्टूडेंट्स? इट शुड बी व्हाट? डेफिनेशन में लिखा है ना, इट शुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी अ whole नंबर। पॉजिटिव कहा गया है या फिर होल नंबर कहा गया है? डेफिनेशन में क्या है? पॉजिटिव इज ऑल्सो करेक्ट, बट whole नंबर इज मोर करेक्ट। जीरो इज पॉजिटिव और जीरो इज नेगेटिव। अगर जीरो भी रहेगा पावर तो भी चलेगा, लेकिन वी शुड से इट शुड बी whole नंबर। सो क्या -1 whole नंबर है? नहीं, -1 whole नंबर नहीं है। इस वजह से ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। नाउ टेल मी दिस, इज दिस द पॉलिनोमियल? इज दिस द पॉलिनोमियल? ओके, मैंने यहाँ पे क्रॉस बेकार में ही कर दिया, हमें अभी इसको फाइंड आउट करना बाकी है ना। ओके, बताओ, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। वेदांत, नाउ यू टेल मी, ये पॉलिनोमियल है क्या? चैट बॉक्स में बताना, इज इट अ पॉलिनोमियल? वेदांत, रुदर? नहीं है पॉलिनोमियल। सब लोग कह रहे हैं नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोई बता सकता है माइक ऑन करके? एनीवन? बताओ कोई। You don't need to be afraid of me. I did not get this problem. Okay, okay, fine, fine, ठीक है। I'll explain it, no problem. But before me, anyone else want to take the chance and speak on the mic? Nobody? Come on. This is not done. And I can see some students are not at all responding. Okay. I think Bhakti is there. She's not responding. Vaishnavi is there. एटलीस्ट अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वेदांत जिस तरीके से पूछ रहा है उस तरीके से क्वेश्चन तो पूछो, साइलेंट मत रहो ना। Because the term of x is 5 root x. Okay, it did not have coefficient. Coefficient तो है यहाँ पे। Coefficient is not the problem, वेदांत। ओके, समझ लो, थोड़ा सा देखो अभी। या अभी वैष्णवी ने आंसर दिया। It is not beyond the number. Wait. Because of the variable is beyond the number. It is not like that. See, all your explanations are wrong. हमारा, because the term of x is 5 root x. Okay, so this is like काइंड ऑफ अ प्रॉपर आंसर। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? हमारा डेफिनेशन है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? पावर कैसी कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द पावर? whole नंबर। पावर शुड बी अ whole नंबर, ठीक है। नो, फर्स्ट प्रॉब्लम को भी भूल जाओ, सेकंड प्रॉब्लम, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सो मुझे बताना, इस पर्टिकुलर टर्म की पावर क्या है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर टर्म की पावर क्या है? जीरो है। जीरो है विशाल, जीरो पावर है। जस्ट सेकेंड, just a second students, there is some notification over here. Okay, all right, तो समझ लो। अभी आयुष ने देखो कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है। सो पहली जो टर्म है उसकी पावर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि टू को हम लिख सकते हैं टू इंटू एक्स रेस टू जीरो। एक्स रेस टू जीरो की वैल्यू होती है वन। सो टू इंटू वन क्या हुआ? वन ही, सॉरी टू ही हुआ। ओके, तो इसकी पावर कितनी हुई? जीरो हुई। अभी इसकी पावर कितनी है? रूट ऑफ एक्स मीन्स इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स रेस टू 1/2। मतलब इस एक्स की जो पावर है वो क्या है? इट इज नॉट अ वोल नंबर। 1/2 ये वोल नंबर नहीं है। ओके, सो इसकी वजह से ये भी क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अभी किसको समझ में आया नहीं आया? आई डोंट नो। ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल।
इट इज अ पॉलिनोमियल। हाउ? इसकी भी पावर देखो वोल नंबर है, इसकी भी पावर वोल नंबर है, इसकी भी पावर वोल नंबर है, तीनों टर्म की पावर वोल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। टॉक अबाउट दिस fourth one, is it a polynomial or not? Fourth one, is it a polynomial or not? Oh, it's not a polynomial. Okay. Kadambari only says no problem. It is not a polynomial. Ayush says it is a polynomial. Vaishnavi say it is not. So, whom do I trust? Okay. See, if you can't see, I will zoom in. Now tell me, is it a polynomial? Vedant, क्या ये polynomial है? सब लोग बताना। Fourth one polynomial है? No, it's not a polynomial. Why? Because देखो यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है? नेगेटिव है, which is not a whole number. Because it is a negative, it is not a whole number, so it cannot be the polynomial. It has integer. Yeah, it is integer, but instead of saying integer, Vedant will say negative. Yeah, see, this is more correct because the power is not whole number. कादम्बरी ने जो लिखा ना यहाँ पे, this is the perfect answer because the power is not whole number. ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ वन बताना, फिफ्थ वन पॉलिनोमियल है या नहीं है? या नेगेटिव इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर, या दैट इज करेक्ट, नेगेटिव इंटीजर इज करेक्ट। ओके, फिफ्थ वन पॉलिनोमियल है या नहीं है? आयुष ने तो कह दिया यस सर इट इज अ पॉलिनोमियल, वेरी गुड आयुष। बाकी लोग, व्हाट डू यू थिंक? पॉलिनोमियल है नहीं है? कादम्बरी आल्सो सेज यस। How? I will explain. I will explain. I'm just asking you whether this is a polynomial or not. I will explain it. Okay. Now, this is a polynomial, students. How? 10x raised to 0. So यहाँ पे जीरो, x की पावर क्या है? 0 है, यानी कि whole नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है। अभी सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने x क्यों लिखा है? x तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10y रेस टू 0 लिख दो, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आने वाली है। आप 10a रेस टू 0 लिख दो। आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल अगर लिखोगे, उसकी पावर अगर 0 दोगे, तो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। सो इट डजेंट मैटर विच इज द वेरिएबल, व्हाट इज द थिंग दैट मैटर्स? पावर ऑफ दैट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किस चीज से पड़ता है? कि वेरिएबल की पावर क्या है। समझ में आया? सो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। नाउ आप लोग में से सब लोग मुझे 8 आंसर चाहिए। ओके, स्टॉप स्टॉप टाइपिंग। ठीक है, अभी 8 आंसर्स में गिनूंगा, 1 आंसर ओनली देना है आपको, रिपीट नहीं करना है। किस किस को समझ में आया कि किस तरीके से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं? यस नो, दो ही आंसर होने चाहिए। वन, ओके, एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया। 8 आंसर शुड बी देयर, 2, 3, 4, 4 स्टूडेंट्स हैव गिवन आंसर। आई थिंक 5, 6। ओके, नो रिपीट आंसर्स, एक बार दे दिया तो मैंने काउंट कर लिया। अभी कौन बचा है? वैष्णवी। एंड लास्ट वन आई थिंक भक्ति। भक्ति, आर यू देयर? आई गेस भक्ति इज नॉट इन द क्लास। ऑलराइट, नो इश्यूज। सो या, अभी सबको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना जरा वेदांत। मान लो वी हैव बाइनोमियल। ठीक है, अभी मैं एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख ही देता हूँ। वेदांत, यू विल टेल मी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x, इज इट अ पॉलिनोमियल? वेदांत, इज इट अ पॉलिनोमियल? इज इट अ पॉलिनोमियल? नो वेदांत, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। पहले पहले टर्म की पावर क्या है? 2 है, विच इज होल नंबर। फाइन। दूसरे टर्म की पावर क्या है? सिर्फ हमें एक एक्स की चेक नहीं करनी है वेदांत, वी हैव टू चेक फॉर ऑल द टर्म्स। सारे टर्म्स की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, पहले एक्स की नहीं।
ओके। दूसरे एक्स की पावर क्या है? दूसरे एक्स की पावर है 1/2। पहले एक्स की पावर 2 है, दैट इज फाइन, लेकिन दूसरा जो एक्स है उसकी पावर है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ना वेदांत, आई थिंक यू वर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास। तुम प्रेजेंट थे वेदांत लास्ट क्लास में? वेर यू प्रेजेंट? Okay, you were present. Okay, so go through the class, last class on the YouTube. Okay, so that you will get more clarification about this. All right. Now write the coefficient of m cube in each of the following polynomial. अभी m cube का कोएफिशिएंट लिखना है हमें। क्वेश्चन समझ लो, क्या लिखना है? m cube का कोएफिशिएंट। पहले के लिए m cube का कोएफिशिएंट क्या है? क्विकली, पहले के लिए m cube का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कोई 3 लिख रहा है, कोई 1 लिख रहा है। इट शुड बी 1। आयुष में था पावर इज 3, कोएफिशिएंट इज 1। किस किस को समझ में नहीं आया? मैं बात कर रहा हूं इस एग्जाम्पल की। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल। ओके, इसकी पावर कितनी है? पावर है 3, बट कोएफिशिएंट इज 1। डू यू गेट दिस? नाउ इस एग्जाम्पल में जरा मुझे बताना, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम, एम क्यूब, सॉरी एम क्यूब। एम क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा गया है ना हमें, तो एम क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है सिर्फ, ओनली फॉर एम क्यूब। ओके, नेगेटिव ऑफ √3, इज इट फॉर एवरीवन? नेगेटिव ऑफ √3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब, सब लोग? या इट इज, सी, नेगेटिव ऑफ √3 is the coefficient of m cube. Now last one, except कादम्बरी, everyone. कादम्बरी ने आंसर दे दिया है, बाकी सब लोग ओके, वैष्णवी ने भी आंसर दिया है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब? सब लोग एक्सेप्ट कादम्बरी। नहीं, थर्ड वन वाले का बताओ अभी, थर्ड वन वाले का, थर्ड वन। सेकंड का मत लिखो, सेकंड का हो गया। ठीक है, सेकंड का हो गया, अभी थर्ड का बताओ। थर्ड में m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, ये तो गलत गलत लिख दिया है कादम्बरी ने, आप लोग तो उसका ही कॉपी कर रहे हो। जरा देखो अच्छे से, हो सकता है उसने गलत लिखा हो। m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? -2/3 है। ओके, -2/3 है। सब लोगों ने सही लिखा है, इंक्लूडिंग कादम्बरी। ठीक है, वेरी गुड आयुष, बोथ आयुष विशाल, वेरी गुड। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अभी कोई नहीं लिखेगा उसको। राइट द polynomial in x using the given information. मोनोमियल विथ डिग्री 7 लिखो। अभी कैसे लिखोगे सर? हम कैसे लिखेंगे मोनोमियल विथ x? मोनोमियल विथ डिग्री 7 लिखना है या फिर व्हाइट बोर्ड शुरू करना है? मोनोमियल विथ x, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? ओके, मैं ही लिख देता हूं। ठीक है, सो सी, मोनोमियल यानी कि उसमें हमें एक ही टर्म होनी चाहिए, एंड पॉलिनोमियल जो है हमें x में लिखना है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो मैं सिंपली लिख दूंगा x⁻⁷, दैट इज इट, डन। इतना ही है, इसका आंसर क्या है? x⁻⁷। आप इसे 3x⁻⁷ भी लिख सकते हो, 4x⁻⁷ भी लिख सकते हो, 9x⁻⁷ भी लिख सकते हो, लेकिन मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट्स इसमें। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि x⁻⁷+2, ये गलत है। ओके, आपको कैसे लिखना है? x⁻⁷ उसमें आना चाहिए, x⁻⁷ उसमें आना चाहिए। इट कैन बी 9x⁻⁷, 3x⁻⁷, 4x⁻⁷, एनीथिंग। मोनोमियल होना चाहिए। नाउ बायनोमियल विथ डिग्री 35, हाउ डू वी राइट इट? बायनोमियल विथ डिग्री 35, बायनोमियल यानी कि क्या? बायनोमियल यानी कि टू टर्म्स,
डिग्री 35 यानी कि x⁻³ मैं पहले लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं 0 1 2 3 5 7 कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मुझे सिर्फ x⁻35 चाहिए, बाकी दूसरी टर्म में कुछ भी लिख सकता हूँ। 2x⁻35 प्लस समथिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा, या फिर कादम्बरी ने जो लिखा है एकदम परफेक्टली लिखा है। सी x⁻35 प्लस बी, मतलब x की जगह पे तो x ही आएगा, ⁻35 ही आएगा, आप प्लस b की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। डिड यू गेट दिस? दिस इज मोर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके ओके, somebody has written x⁻35 plus x⁻5. No, it's not right. आयुष, it is not right. x⁻30 plus x⁻5 उन दोनों का एडिशन नहीं होगा। ओके, यू आर रॉन्ग। ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। इस तरीके से एडिशन नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, तुमने ट्राई किया, विच इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यू आर ट्राइंग, दैट इज वेरी गुड। ऑल राइट, थर्ड वन, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। अभी डिग्री 8 होनी चाहिए, ट्राइनोमियल लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे? अभी जैसे कादम्बरी ने लिखा वैसे मैं लिखता हूँ। ओके, x⁻8 तो फिक्स होना चाहिए हमारा। बाद में a x प्लस बी, मतलब a की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, b की जगह पे आप कुछ भी लिख दो। ओके, या x⁻8 प्लस b minus n. Okay, minus, no need to write minus. Okay, it is fine, no problem. माइनस एन भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम। हमें क्या है, सिर्फ 3 टर्म चाहिए और उसमें x⁻8 चाहिए। ओके, कादम्बर ने जो लिखा है वो भी सही है, मैंने जो लिखा है वो भी सही है। और बाकी कोई कुछ लिखना चाहेगा? ट्राइनोमियल लिखना है विद डिग्री 8। चलो मैं अभी आपके साथ ब्लैक बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सब लोगों ने उस पर लिखना है, ट्राइनोमियल लिखना है। नाउ जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। ओके, वेट, nobody will write. I hope it is visible to you, right? Just a second. It is visible to you, all right. Now उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लो। लिखना नहीं है किसी ने भी। ओके, वेट वेट फॉर मी। मैं आपको एक स्पेस एलोकेट करूंगा, उसमें ही आपको लिखना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव 6 स्टूडेंट्स ना। सो पहला स्टूडेंट यहाँ पे लिखेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। ओके, नो अभी थोड़ा सा मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने जो लास्ट के 2 स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए थोड़ी सी कम जगह रखी है, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी जगह बढ़ाता हूँ। ओके, सो इस तरीके से लिखना है, कोई भी किसी और इसमें नहीं लिखेगा। नो अपना अपना इनिशियल लिख दो यहाँ पे कॉर्नर पे कि सर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लिखने वाली हूँ। ओके, चलो लिखना शुरू कर दो। राइट योर इनिशियल इन द कॉर्नर। ओके, दिस हैज बीन टेकन बाय समबडी। नाउ टेक सेकंड वन। फर्स्ट वन इज गॉन, सेकंड वन। चलो, यहाँ पे पॉलिनोमियल, अरे इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है आपको, आपको पॉलिनोमियल लिखना है उसमें, उस बॉक्स में। ओके, 8x, चलो ठीक है, ए एम इज 8x³ 8x⁻32। ओके, चलो करो, मैं देख रहा हूँ सब लोग क्या कर रहे हो। ओके ओके, चलो अच्छे से इरेजर यूज करो, ब्लैक सब कुछ यूज करो। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। ट्राइनोमियल लिखना है स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब लोग व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ट्राई यूजिंग इट। तीसरे बॉक्स में 2 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना, बाकी 3 बॉक्स एम्प्टी है। हाँ ओके, या अरे अभी दोनों यहाँ पे आ गए। ओके हाँ चलो, पिंक वन राइट में रहना, ब्लैक वन जो है वो लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, x⁻8
प्लस ए प्लस एन। आई थिंक ग्रीन कलर में जो है वो कादम्बरी ने लिखा है। ऑल राइट, एक्स रेस टू 8 प्लस 8 प्लस 7, एक्स रेस टू 8 माइनस एन इंटू 7। इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, हाँ, जिसने किसी ने भी थर्ड बॉक्स में लिखा है ना, तो प्लस होना चाहिए, इंटू नहीं। एक्स रेस टू 8, ओके, ठीक है। तो पहला जो लिखा है आयुष मेथा ने, 8x रेस टू 32, इट इज रॉन्ग आयुष। हमें क्या लिखना है? ट्राइनोमियल लिखना है। ट्राइनोमियल यानी कि क्या? उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स होने चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड आयुष? ओके, या, फाइन। सो स्टॉप राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है? स्टॉप राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। शैल आई स्टॉप? ओके, डोंट इरेज, लेट इट बी, लेट इट बी। चलो ठीक है। So shall I stop sharing whiteboard? Everyone come back to the meeting. Leave the whiteboard. Close the tab. Whiteboard tab. Close whiteboard. Okay. Fine. So nobody will be able to write on the whiteboard now. सब लोगों ने वापस आना है क्लास में। ओके, ऑलराइट। सो अभी फोकस करो। अभी सबको समझ में आया हमें करना क्या था? ट्राइनोमियल लिखना है विथ डिग्री 8। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स आने चाहिए। डिग्री 8 यानी कि x की जो पावर है वो 8 होनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। बाकी आप कुछ भी लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी कौन सी? पहले तो डिग्री ऑफ x शुड बी 8, एंड द सेकेंड वन इज देयर शुड बी 3 टर्म्स। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Okay, now it is very interesting question. We'll solve this fourth question and we'll stop for today. Okay, write the degree of the given polynomials. First one की डिग्री लिख दो जल्दी। फर्स्ट वन की डिग्री, what is the degree of first polynomial? Think about it and then write it. Degree of first polynomial. Everyone come back to the class. Whiteboard पे आप नहीं लिख पाओगे. Somebody is there on the whiteboard. Okay. 1/2 है, कोई बोल रहा है 1 है, कोई बोल रहा है 0 है। कादम्बरी ने कहा 1/2 है डिग्री। बाकी लोग बताओ डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री एंड पावर वन ऑन द सेम थिंग्स। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री भी सेम है, पावर भी सेम है। Okay, I got a new answer, that is 1/5. 1/2. What is the degree of polynomial? Are you sure 1/2? I'm not sure. Students, degree of polynomial means highest power of variable and not the coefficient. तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल दिया ही नहीं है। So it should be, degree should be 0. Exactly. Degree should be 0. समझ में आया? यहाँ पे वेरिएबल दिया ही नहीं है ना, तो वेरिएबल दिया ही नहीं, इसका मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो, डिग्री जो है वो 0 है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, सेकंड वन। इसकी क्या है? इसका तो बहुत ही इजी है, देखते ही बता दोगे आप लोग। इसकी पावर 0 है, एग्जैक्टली exactly. इसकी क्या है? थर्ड वन की क्या है स्टूडेंट्स? डिग्री पावर जो कुछ भी आप कहते हो, इट इज 2। ऑल राइट, वेरी गुड। इसकी क्या है? पावर, डिग्री। थर्ड वन की क्या है? फोर्थ वन की, सॉरी, 10। ऑल राइट। फिफ्थ वन की? 1। श्योर? सब लोग श्योर? 9 नहीं, 1 1। 1 कादम्बरी, या, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। ओके, 1। इसकी क्या है बताना जरा?
5 है, ऑल राइट। सिक्स्थ वन की बताना। नो दिस इज सॉरी, सेवेंथ वन की बताना। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेवेंथ वन की क्या है पावर? सेवेंथ वन की पावर क्या है? 3 है। कैसे? सब लोग बताओ। कोई बता रहा है 0, कोई बता रहा है 1। सेवेंथ वन की पावर क्या है? फिर से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। रिपीट, लिख दो फिर से। ओके, कादम्बरी लिखा 3। बाकी लोग? Ayush also says, Vishal also says 3. Yeah, exactly. 3 is the power. 3 is the degree of this polynomial. How? X raised to 1 plus y raised to 1 plus z raised to 1. इन तीनों के 1 1 मिलके क्या होगा? 3 होगा। ठीक है? या गुड। इसकी डिग्री बताना जरा मुझे। 8th one की डिग्री क्या है? Oh, somebody is saying 7. Some are saying 10. Which is the correct? 7 or 10? 10 is the correct answer. 10 is the correct answer. सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया है? डू वन थिंग, यूट्यूब पे जाना है। आप लोगों को पता है यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। सब लोगों को जानकारी है ना इसके बारे में कि हमारे जो लाइव क्लासेस है वो सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। किस तरीके से उन्हें फाइंड आउट करना है, किस तरीके से देखना है, आपको सबको पता है ना? अगर नहीं पता है तो फ्रैंकली बता दो। मैं ग्रुप में लिंक पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, जिससे कि आप उस लिंक को सेव कर लेना और बाद में देखते रहना उस पे वीडियो जो है। हाँ, नेक्स्ट डे अपलोड होते हैं या फिर कभी कभी 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 3 3 दिन भी लगते हैं। ओके फाइन। सब्सक्राइब किया है नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन वीडियोस आप लोग देखो। अगर कोई क्लास आप मिस करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, सो इसके लिए क्या है ना कि आपको वो देखते रहना है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, स्पेशली वेदांत, आई विल रिकमेंड यू कि आप तुम जाके वो वीडियो देख लो। ओके पिछले क्लास का, दोनों क्लास के वीडियो देख लो, आपको पॉलिनोमियल एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा है। ओके सो स्टूडेंट्स, आई विल नॉट लाइक take your much time. Okay, we'll stop here. And from the question number 5, we'll solve in the next class, isn't it? 5 to 9, we'll solve in the next class. That's it for today, and you guys are free to leave. Bye bye. Good night. Bye bye. Yeah, you can do these questions as a homework. Okay, you try it, do the homework. Okay, and if you find any difficulty, we'll discuss it. All right. Yeah, bye. Leave everyone. Leave the class. Leave the class. चलो चलो सब लोग लीव करो क्लास। सी, until and unless you leave the class, you can't get homework on Google Classroom. Post your mail ID आयुष। तुम्हारा मेल आईडी पोस्ट कर दो। किस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें होमवर्क नहीं आता है वो पोस्ट कर दो। कदम भक्ति, यू कैन लीव द क्लास। एक्चुअली मैथ्स वन के लिए ना मैं होमवर्क पोस्ट कर ही नहीं रहा हूँ आपके लिए। ओके सो इसके वजह से तुम मैथ्स वन के लिए होमवर्क नहीं मिल रहा है तुम्हें। ओके सो आई विल मेक श्योर कि आपको होमवर्क सब लोगों को आएगा इससे आगे। ओके चलो बाय। लीव द क्लास आयुष।